ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਾਦਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਈਏ, ਸੰਤ ਬਣੀਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ, ਪੰਚ, ਸੰਤ, ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਡਰੈਸ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਖ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਭੇਖ ਤੋਂ, ਡਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਦੋਏ ਠੌਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਿੰਦਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਪ ਤੇ ਵਿਕਰਤ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ, ਪੰਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਗੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
उसे तो ही किसी देवते अवतार की मूर्ति खड़ी करता है, तो क्षमा करना उसे तो ही कई बार काल की मूर्ति बना, कई बार मौत की मूर्ति बना। मिट्टी वो ही है। चोर बंदे दे बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाए तो वो भी वो कुछ मिलेगा, मटीरियल सारा वो भी वो मिलेगा। तो एक साध दे शरीर का एनालिसिस करो, वो भी वो कुछ मिलेगा। इस वास्ते ये गल नहीं है कि परमात्मा ने ये चीजा कोई वखरी वखरी वस्तु वखरी वखरे पदार्थों तो बनाई है, उन्हें तो पंच तत्त कर सारी सृष्टि साजी है। एक मैं वार्ता पढ़ी है, इसी तरह जिक्र मिलता ना, आम असीं शैतान का नाम सुनते हैं, शैतान भी लोग कहते हैं, कलयुग भी कहते हैं, बड़े नाम रखे ने, वख-वख बोलियां विच वख-वख मत मतांतरां विच उहदे नाम मनुखां ने पाए ने। तो मैं कहानी पढ़ी, आम कहानी यह है कि जिस वेले परमात्मा ने रचना बनाई तो बंदा बनाया सब तो अखीर ते वधिया चीज सब तो लास्ट, ते सारिया देवतियां नूं कहा भी इहनूं तुसीं मत्था टेको, नमस्कार करो। तो कहंदे ने सारिया ने परमात्मा का हुक्म मान लिया, रब की गल मान ली, मत्था टेक दिता। पर एक जिहड़ा सी ना उन्हें इनकार कर दिता, उन्हें आख्या नहीं, क्योंकि वो समझदा सी, उन्हें ख्याल किया भी मैं भी बड़ा श्रेष्ठ बनाया गया तो मैं अगे क्यों चुका, मैं तो देवता वा। उहदे इनकार ने शैतान पैदा किया। शैतानी उदों पैदा होती है, यह कहानी बड़ी रहस्यमयी है। लोग इहनूं इउं पेश करते हैं कि शायद रब ने पहलों शैतान बनाया होया सी ते उसने इनकार कर दिता मनुख नूं मत्था टेकण तो। पर कहानी का रहस्य पढ़दे आए इस गल का पता लगा कि कहानी असल में इस वास्ते नहीं कही गई। कहानी इसलिए कही गई है कि जिहड़ा मनुख कादर दी कुदरत दे किसी करिश्मे तो भी इनकारी है वो शैतान है, क्योंकि वो उसनूं नहीं मनदा, उसदी किरत ते किंतु करदा है। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने देखो भाई, ये जिहड़ी परमात्मा की बेअंत रचना है ना, उहदे उत्तों सदके जाना, कुर्बान जाना, उहदी वडियाई करनी, उहदी रचना दे गुण गाउणे, ये तां ही संभावित हो सकणगे जे असीं ਜਿਹੜੇ लोग माड़े गिणदे हैं असीं उन्हां नूं भी उस वाहिगुरू अकाल पुरख की रचना का भाग मन्नांगे तां भी ये भी उहदी रचना है। गुरु साहब ने किधरे भी बाणी विच ये गल नहीं कही भी ये माड़ी माड़ी जिहड़ी रचना है किसी होर ने बनाई है, रब ने नहीं बनाई। ते असीं अजे तक इन्ना विश्वास नहीं कर सके भी सारा कुछ परमात्मा ने बनाया। ते फिर परमात्मा की बंदगी का तो सवाल ही बड़ा दूर है। जदों असीं उहदी किरत ते ही विश्वास नहीं कर रहे तो ये यकीन ही नहीं रखते कि सारी कायनात का वो करता है, तो फिर उहदे संबंधी किस तरह गल हो सकती है। इत्थों तक ये पौड़ी काफी अरसा होया है। इसका कीर्तन करदे प्रमाण कर देंदे एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान ने इत्थों तक गल कही भई गुरु साहब ने लिखिया नानक नीच कह विचार। अर्थ करदे उस मनुख ने गल कही भी नानक खे नीचां दी विचार कहंदा है। हुण ये अर्थ गलत है। नीच जिहड़ा है लफज गुरु नानक साहब ने अपने लिए वरतिया, निमाणा। जिस तरह गुरु साहब ने वरतिया ना कुदरत कवन पे मेरी की ताकत है, इहो समझो भी उसे दा अर्थ कीता है नानक नीच कह विचार पे निमाणा नानक ये विचार कहता है कि वारिया ना जावां एक बार। गल तो वही सी, लेकिन मनुख नूं लफ्जां दी कई बार समझ नहीं पैंदी ते गुरबाणी दे व्याकरण नूं ਇਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ सिस्टम ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ नहीं समझदा वो ये अर्थ करेगा तो सिद्धांतिक तौर पर यह अर्थ गलत हो जाएगा। क्योंकि गुरु नानक साहब के बनाए हुए ये नीच नहीं हैं, या गुरु नानक साहब ने इन्हां वास्ते कोई नीचां का सर्टिफिकेट नहीं दिता। गुरु नानक तो बहुत उच्ची गल करते हैं। असीं सारी बाणी नूं माफ करना, जिन्ना चिर असीं समुची बाणी नूं चंगी तरह नहीं समझते असीं बाणी संबंधी कोई गल ठीक नहीं कर सकांगे। बाणी के अंदर तीन चीज़ां बड़ियां सूक्ष्म ने, तिन्ने फाइन आर्ट्स ने। एक तो अंदर फिलसफा है जिन्हों असीं दर्शन कहने हैं, शास्त्र कहने हैं, फिलासफी कहने हैं, गैर गंभीर ज्ञान कहने हैं। दूसरा ये अंदर कविता है, तीसरा ये अंदर संगीत है। इतने फाइन आर्ट्स ने और जिहड़े लोग कोमल कला के संबंध में जानकारी रखते हैं उन्होंने पता है भी कोई भी मनुख एक फाइन आर्ट में भी सारी जिंदगी में प्रवीण नहीं होता। बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी कहता भी आ पहलू ये रह गया, इन्ना कि मैनूं पता लगा। फाइन आर्ट्स का मसला यहो जिहा ते गुरबाणी के अंदर कितनी चीज़ां बड़ियां सम्मिलित कीतियां गईयां ते कोई बंदा एवं उठ के सुपने च आखे भी हुण मैनूं सारा पता लग गया, सिवाय मूर्खता दे और कुछ नहीं होएगा।
इसलिए बाणी नूं समझण लई बहुत गहराई विच जाण दी लोड़ है। हुण सतगुरु कहंदे ने नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस जिथे नीच संभालीन तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु साहब ते इस विचारधारा दे ने कि मैं उन्हां दे नाल खलोता। इसे करके गुरु साहब ने कई बार अपने आप नूं साध नानक भी आख्या, कई बार दीवाना भी आख्या, कई बार मूर्ख भी आख्या, कई बार दास भी आख्या। क्यों? क्योंकि गुरु साहब कहते हैं परमात्मा के सामने तो मैं सेवक ही हाँ, उसके सन्मुख तो मेरी कोई हस्ती नहीं है। इत्थे भी सतगुरु यही गल कहते हैं कि मेरी कोई ताकत नहीं कि परमात्मा की इस अनंत रचना का मैं कोई हिसाब किताब तुहाडे सामने रख सका। हाँ, ये ओदी बेअंत रचना है ते ये स्वीकार करना है। जिन्हें ओदी रजा विच राजी रहण दी गल सिखनी है ना, उन्होंने मनना पएगा कि उसकी रचना दे अंदर मूर्ख भी हैं ते इन्हां नूं भी इत्थे रहण दा अधिकार है। कोई बंदा फुल्लां नाल प्रेम करदा है, आखे कंडे नहीं होने चाहिए। मैं पिछे पढ़िया सी कि अमेरिका च एक एग्रीकल्चर के विज्ञानी ने उन्हें कोशिश की ते कैक्टस हुंदी है ना जिहनूं कंडे हुंदे थोर भी कहंदे उहनूं, कई किस्म दी है। उन्हें 6-7 साल मेहनत करके ना ते कैक्टस के बूटे उत्ते इंट्यून हो के भावना नाल यत्न करके ते एक टाणी उहदे विच इहो जी पैदा कर ली जिन्हों कंडे नहीं। कितनी मेहनत की उस बंदे ने तां किते एक शाख मामूली जी पैदा हो सकी कंडियां तो बिना। ते दुनिया च कैक्टस बहुत है, मनुख जी की ताकत है। ते दुनिया के अंदर केड़ी जगह है फिर इस धरती की गल नहीं, 50,000 तो भी वध धरतियां ते साइंसदान कहंदे ने हैगियां ने, नजर च आ गई ने, उस तो परे बहुत ने। ते किथे बंदा करूगा जी कि मैं हुंजा मार दियां सारे मूर्ख कढ़ दियां, कित्थों कढ़ेगा? ये तो गल ही नहीं होनी। ये उहदी रचना का भाग ने ते जिहड़ा बंदा उहदे तो कुर्बान होने वास्ते तैयार होवेगा ना, उहनूं सारी टोटैलिटी जिहड़ी है, समुची सृष्टि जिहड़ी है, उहनूं स्वीकार करनी पवेगी। परमात्मा के रस्ते उत्ते सारा कुछ स्वीकार करके बंदा तुर सकता है। हिम्मत चाहिए है ते जे ये हिम्मत मनुख के अंदर नहीं आउंदी ते ओ कदे भी उहदे तो कुर्बान नहीं होएगा, किंतु करता रहेगा, कहते इत्थे गलती की परमात्मा ने, आ नहीं ठीक किया। रोज असीं करते हैं यह गल परमात्मा ने ठीक नहीं की, बड़ा जा मैनू कंडा चुभ गया, मैं कहां गल है सवेरे नितनेम कीता सी, अज रब ने कंडा चुभ दिता। असीं ते समझते हैं भी माड़ा जिहा धर्म कर्म करके कि रब की कुदरत नूं बदलण की शक्ति साडे अंदर आ गई है। नहीं, ये गल हो नहीं सकती, कदे होई नहीं। ते असीं उस गल की आस रखते हैं। कहंदे ने किसी फकीर नूं ख्याल आ गया कि रब ने स्वर्ग बनाया, बहिश्त सुख, ते उन्हें नरक क्यों बनाया? किंतु कीता उन्हें जिवें असीं करते हैं। ते सोचदा रहा पर गल बनी कोई ना। रात नूं उहनूं सुपना आया। सुपने च की देखदा है कि बहिश्त का नज़ारा देखा। कहानी है, नज़ारा देखा उन्हें ते उहदे च की देखा भी लोग बैठे ने ते बड़े पदार्थ ने उन्हां कोल खाण नूं, फल फ्रूट वधिया सब कुछ, ते उन्हां दे हथ जिहड़े ने ना बड़े लंबे ने। हुण जे यह हथ जिहड़ा ना लिमिट च, माफ करना मैनूं, ये जे थोड़ा जिहा लंबा हो जाए तुसीं मूँह च गराही नहीं पा सकदे। परमात्मा की कुदरत नूं असीं समझे नहीं। हर मनुख के शरीर के स्ट्रक्चर के मुताबक उहदे हथ की लंबाई है, जे उहदे तो घट हो जाए तां नहीं मनुख चल सकदा, जे उहदे तो वगदे एहसास करके वेखना। परमात्मा का तो असीं शुक्रगुजार कर ही नहीं सकते। जे थोड़ा जिहा लंबा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, इत्थे जाएगा मूँह च पैण दी गल ही नहीं बनेगी। हथ लंबे हैं तो की हो रहा है? स्वर्ग एक दूसरे के मुंह में बुराइयां पा रहे हैं, क्योंकि अपने मुंह च आप नहीं पाई जा सकती, वो दूसरे च पा रहे और दूसरे च पा रहे हैं। गल बड़ी गहरी है। फिर उन्हें नरक देखा। नरक च की देखा? उसी तरह सब कुछ मौजूद है, सब कुछ हो जाइए, हाथ भी लंबे ने, पर हो की रहा है? हो रहा है कि हर एक अपने मुंह च पाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने च भी नहीं पैंदा ते दूसरे का, दूसरे को नहीं दूजे भी मार रहा पे मुंह च न पै जाए। बस इतना ही फर्क है। स्वर्ग है कि सब कुछ स्वीकार करके मनुखता की सेवा में जुड़ जाना, परमात्मा की शुकराने में जुड़ जाना, सब सुख है। ते नरक है आप भी कुछ नहीं खाना, दूजे ने भी कुछ नहीं खाण देना, हर थां लत्त अड़ाउणी, रजा विच राजी नहीं रहना, इनकारी होना, सिर फेरी जाना। कहानी मुक गई, समझ आ गई। कहण दा इत्थे कहानी मनुख दी थोड़ी जी जिहड़ी इहनूं सुतंत्रता मिली है उन्हें बिगाड़ी हुई है।
ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ परमात्मा दी इस रचना दी हर एक गल दे अगे सिर झुकाउणा है कि जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भी तू सदा सलामत है, बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने आउण जाण वालियां ने। कहंदे ने किसी राजे ने अपनी वजीर मंडली नूं बुला लिया, आखण लगा कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी सिक्ख्या जिहदे नाल जिंदगी दे सब दुख जड़े, सब औकड़ां जिहड़ियां ने उन्हां नूं भुल जाण दा, उन्हां तो उच्चे उठण दा एहसास पैदा हो जाए। लभो, भाल करो। बड़ी मुश्किल च फस गए। भाल कीती, उन्होंने एक फकीर फड़ लिया, उन्होंने कहण लगे भी राजे नूं कुछ दसना। कहण लगा कोई गल नहीं, करदे हां गल। उन्हें एक पुरजे उत्ते 2 अखर लिख के ते कहण लगा भी ये साधारण पुरजा नहीं है, साधारण गल नहीं है, ये उदों खोलना है जो किते बहुत समझो भी हुण बेबसी हो गई, कुछ नहीं नजर आ रहा, इनू उस वेले खोल के पढ़ना। ऐ नहीं भी माड़ी जी सिर पीड़ हुई तो खोल के पढ़ लो, नहीं। जिस वेले देखो भी हुण सारे पासे हनेरा ही हनेरा है, ठीक है। कहंदे ने उहदे देश ते हमला हो गया, दुश्मन उहदे पिछे अगे अगे दौड़िया फिरदा, बड़ी मुसीबत च फसिया। ते उहने वेख्या भी हुण ते मेरी जान खतरे च है, मरनी वाला वा, पढ़ के तो वेख ला लिख के की दिता है। ते लिखिया की सीगा भी ये भी गुजर जाएगा, इनकी कोई चीज भी रहने वाली नहीं, सुख आएगा उन्हें भी लंघ जाना, दुख आएगा उन्हें भी लंघ जाना, कोई चीज स्थिर नहीं है। जदों ये भाव मनुख के अंदर आ जाएगा ना, तो फिर वो रजा विच राजी रहने की गल उहदी समझ आ जाएगी कि सुख आया भी चला जाएगा, दुख आया ये भी चला जाएगा, किहड़ी चीज है जिहड़ी सदा स्थिर रहिंदी है, जिंदगी मिली है भी नहीं रहनी। तो फिर मनुख कहेगा कि जो तुद भावै साई भली कार, जो तैनू चंगा लगता है वो भला है। फिर बंदा जे चोर निंदक सारे वेखेगा ना, तो उन्होंने भी रब की रचना का अंग मनेगा। कबीर का मैं जिक्र कर रहा था, कबीर साहब उस ही शब्द विच कहंदे आ, अवल अल्लाह नूर पाया, पढ़ते हैं असीं, शब्द की गहराई विच उतरन की आपां कोशिश करिया करिए। असीं ते पढ़ना भी नहीं ठीक समझ सके जे, गहराई तो बहुत दूर की गल है। ते कबीर कहंदे आ, कहंदे ने माटी अनेक भांत कर साजी साजन हारै, ना कछ पोच माटी के भांडे। पोच कहते ने अवगुण नूं, दोष नूं, नुक्स नूं। कहते ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभार है। कुंभार कौन है? परमात्मा। ते मिट्टी कहते ना इन्हां तत्तां दा दोष है, ना परमात्मा दा कोई दोष है, ये उसने रचना दा सुभाव ही इस तरह बनाया है। उस कुंभार ने भी कोई गलती नहीं की, ये खेल ही इस तरह का है। ते कोई खेल भी जिहड़ा ना वो सिर्फ जित दे असूलां नाल नहीं चलदा, उहदे विच हार दियां भी कुछ गल्लां आउंदियां ने, उहदे विच फाउल्स भी आउंदे ने, वो भी उस खेड दा भाग ने। और दुनिया की कोई खेड नहीं जिहदे विच फाउल्स ना होण। ते इह संसार दा खेल भी इसे तरह ही है, खेल भी है, तमाशा है। ते तमाशे विच इन्हां चीज़ां दा होना बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है, चल नहीं सकता। साडे वास्ते ये जिम्मेवारी है, लेकिन वाहिगुरू अकाल पुरख वल्लों एक खेल है, ये तमाशा है। ते असीं चूंकि इहनूं तमाशा नहीं समझते, ते अपनी जिम्मेवारी का एहसास कोई नहीं, इस करके असीं कदम कदम ते किंतु करते हाँ। ते सतगुरु गुरु नानक साहब सानू समझा रहे हैं कि भाई इस रचना के अंदर असंख्य मूर्ख अंधकोर होर अन्ने, सिर्फ अखां दे अन्ने नहीं, जिहड़े मानसिक वृत्ति करके सोच करके भी पुंज जहन ने, जिहड़े सही गल जिहड़ी उसनूं समझण दी किदे लोग ने अवतार पैगंबर जोर ला ला के थक गए, ते वो मूर्खता की गल उवें चलाई जा रहे हैं, वो समझण की कोशिश नहीं करते। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर, अनगिणत चोर हैं। हरामखोर ने हक हलाल की कमाई नहीं, खो खिंज के समाज च इधर उधर गड़बड़ करके सब कुछ करते हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर, कहते अनगिणत लोग ने जेड़े इस संसार में हुक्म करके समझते असीं मालक हाँ, अपना जोर करके दुनिया नूं ताकत विखा के दमजमे मार के तुर जाते, रहिंदे तो भी नहीं। असंख्य गल वड्ड हत्या कमाए, अनेक लोग हैं जिहड़े गल वड्डण वाले ने, जिहड़े दूजियां दा खून ही पीण उत्ते तुले हुए ने ते हत्या करते हैं, बंदियां दी, मनुखां दी, जीवां दी, जिहड़ा भी उन्होंने लभ पवे वो अगले दा लहू चूसण की कोशिश करते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाए, अनगिणत हैं जिहड़े पाप कर्म करते हैं,
पाप करके संसार विचों तुर जाते हैं। असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिराए अनगिणत हैं जिन्हों ने जिंदगी च कूड़ ही कूड़ इकट्ठा किया ते कूड़ विच ही तुरे फिरदे ने, जम्मण मरण च पए हुए ने। असंख्य मलेश मल पख खाए, मलेश तो मतलब है मल इच्छा, माड़ी बुद्धि वाले, माड़ी इच्छा रखने वाले, ते उन्हां दा काम की है गंदगी पखना, माड़े ख्यालात, माड़ा व्यवहार, हर वेले माड़ी सोच, कहंदे ने वो भी इस संसार विच तुरे फिरदे ने। असंख्य निंदक सिर करें पार, अनगिणत हन निंदक हन जिहड़े अपने सिर उत्ते निंदा कर करके ते भार चुकी जाते, बोझ बनाई जाते ने अपने उत्ते। सतगुरु कहते ने ये सब वाहिगुरु अकाल पुरख दी रचना दा अनगिणत भाग ने, असंख्य ने भी, इन्हां दी भी आपां गिणती नहीं कर सकते। कई लोगों ने गिणती करने की कोशिश की है, कहते जे इन्ने किस्म के पापी हुंदे ने, इन्ने किस्म के चोर हुंदे ने, ये सब मनोकल्पित गिणतियां हन। सतगुरु कहते परमात्मा दी रचना दे तुसी किसे अंग दी भी गिणती नहीं कर सकते। कोई स्टार्स की गिणती कर रहा है, कोई धरती की गिणती कर रहा है, कोई हवा पानी मेजरमेंट कई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एक विचारवान ने बड़ी वधिया गल कही है, वो कहते हैं जिहड़ा माया का चक्कर है ना, माया का चक्कर सिर्फ इतना ही है कि मनुख गिणती मिणती विच जिहड़ी भी चीज नूं परमात्मा की कुदरत नूं मनुख माप तोल विच जिन्ना चिर रखने की कोशिश करता उन्ना चिर मायावादी है, चाहे वह साइंटिस्ट है चाहे वह धार्मिक है, उन्ना चिर दार्शनिक नहीं, परमात्मा की भगती वाला नहीं, उन्ना चिर मायावादी है जिन्ना चिर परमात्मा की सत्ता नूं गिणन की कोशिश करता है, चाहे किसी पहलू तो भी। इस करके कोई चोरां निंदकां की लिस्ट बनाने की कोशिश करेगा तो वह भी उस दायरे च है, कोई साधा की लिस्ट बनाने की कोशिश करेगा वह भी उस दायरे विच है, क्योंकि वो इस कोशिश विच है कि परमात्मा की इस रचना का कोई हिसाब किताब कर सका। भगत नहीं है, वो पंच नहीं है, वो गुरमुख नहीं है, वो संतजन नहीं है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने असंख्य मलेश मल पख खाए, असंख्य निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै, साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। कहते ने निमाणा नानक भाई ये विचार तुहाडे नाल साझे कर रहा है, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं उस परमात्मा की गल मुकम्मल तुहाडे नाल साझी कर सकां, मैं ते ओहदे तो एक वारी सदके होण जोगा भी नहीं। इस करके भाई मैं तो यह कहना भी हे निरंकार तू सदा रहने वाला है, तेरी रचना बेअंत है, ते मैं तेनू जो कुछ भाउंदा उसे नूं सरे खम तस्लीम करदा। मैं ओहदे अगे सिर झुकाउणा भी जो तुद भावै नानका साई गल चंगी, जो तुद भावै साई भली कार, वारिया ना जावा एक बार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस पौड़ी अंदर इस भाव नूं उजागर किया है। अगली पौड़ी के अंदर असंख्य नाम असंख्य थाम की चर्चा है, आने वाले समय अंदर चर्चा करने का यत्न किया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।